ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اس وقت کے 7 عجائبات کون سے ہیں؟ معزز سامعین اکرام، یہ وہ جگہ ہیں جو اپنی تاریخی اہمیت، شاندار تعمیرات اور منفرد خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا کو حیران کن پیغام دیتی ہیں۔ ان عجائبات میں سے ایسی جگہیں بھی شامل ہیں جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور کچھ جگہوں پر انسانی محنت اور عشق کی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 7 عجائبات کی سیر کرانے والے ہیں، ان کی تاریخ، خصوصیات اور وہ راز جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو پھر ویڈیو دیکھیں اور ان عجائبات کی شاندار دنیا کا حصہ بنیں، کیونکہ جو تفصیلات ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ انسانی تاریخ میں کچھ تعمیرات ایسی بھی ہیں جو اپنی بے مثال خوبصورتی، پیچیدہ فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کی بنیاد پر دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ نیو 7 ونڈرز فاؤنڈیشن نے 2007 میں ایک عالمی ووٹنگ کے ذریعے 7 جدید عجائبات کا انتخاب کیا ہے جو آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں، مورخین اور ماہرین تعمیرات کے لیے باعث حیرت ہیں۔ یہ عجائبات انسانی محنت، تخلیقی صلاحیت اور فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ معزز سامعین اکرام، دیوار چین دنیا کے قدیم ترین دفاعی ڈھانچوں میں سے ایک ہے، جو چین کے مختلف حکمران خاندانوں کے زیر نگرانی صدیوں تک تعمیر کی جاتی رہی۔ اس کا بنیادی مقصد شمالی حملہ آوروں، خاص طور پر منگولوں اور دوسرے خانہ بدوش قبائل سے سلطنت چین کی حفاظت تھا۔ اس دیوار کی تعمیر کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح میں مختلف چینی ریاستوں نے کیا، مگر اسے ایک مربوط اور مضبوط دفاعی نظام کی شکل شن چی ہوانگ نے دی، جو چین کا پہلا شہنشاہ تھا۔ بعد میں منگ خاندان نے اس دیوار کو مزید مضبوط اور بہتر بنایا۔ اس میں اینٹوں، پتھروں اور لکڑیوں کا استعمال کیا گیا اور کئی قلعے اور واچ ٹاورز بنائے گئے۔ آج جو حصہ سب سے زیادہ محفوظ ہے وہ منگ خاندان کے دور کی تعمیرات میں شامل ہے۔ یہ دیوار چین کے شمال میں مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی کل لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کی سب سے طویل دیوار بناتی ہے۔ بعض مقامات پر اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس پر گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں، جبکہ کچھ مقامات پر یہ بہت زیادہ خستہ حال ہو چکی ہے۔ اس دیوار میں قلعے، واچ ٹاورز اور دروازے شامل ہیں جو اسے مزید دفاعی طاقت فراہم کرتے تھے۔ یہ کام خیال ہے کہ دیوار چین خلا سے نظر آتی ہے، لیکن جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس دیوار کی تعمیر میں لاکھوں مزدوروں نے حصہ لیا، اور کہا جاتا ہے کہ جو مزدور مر جاتے تھے انہیں دیوار میں دفن کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ 1987 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، دیوار چین سیاحوں کے لیے ایک بڑی کشش رکھتی ہے، خاص طور پر بیجنگ کے قریب بادالنگ کا حصہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ہر سال لاکھوں افراد اس عظیم دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے یہ آج بھی دنیا کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ معزز سامعین اکرام، پیٹرا ایک قدیم تاریخی شہر ہے جو اردن میں واقع ہے اور دنیا کے عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی حیرت انگیز چٹانی تعمیرات، منفرد ثقافتی ورثہ اور تاریخی اہمیت اسے دنیا کے سب سے مشہور آثار قدیمہ میں شامل کرتے ہیں۔ یہ شہر نبطیوں نے 312 قبل مسیح میں آباد کیا تھا، جو ایک عرب قبیلہ تھا اور تجارتی قافلوں کے ذریعے اپنی معیشت چلاتا تھا۔ پیٹرا کے سب سے حیران کن بات اس کا محل وقوع ہے۔ یہ ایک ایسی وادی میں واقع ہے جس کے اطراف بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور اس میں داخلے کے لیے صرف چند مخصوص راستے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک محفوظ اور دفاعی مقام بن گیا تھا۔ پیٹرا کو چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا ہے اور اس کا سب سے مشہور حصہ الخزانہ ہے، جو ایک عظیم الشان مقبرہ ہے۔
इसमें एक बड़ा रूमी तर्ज का थिएटर मौजूद है जिसमें हज़ारों लोग एक वक्त में बैठ सकते थे। पेट्रा में कई अहम इबादत गाहें, कब्रिस्तान और रिहायशी इमारतें भी मौजूद हैं। 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा ने इस शहर को दोबारा दरियाफ्त किया क्योंकि ये सदियों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा था। पेट्रा का नाम यूनानी लफ्ज़ पेट्रोस से निकला है जिसका मतलब है चट्टान। इस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की चट्टानें गुलाबी रंग की हैं। पेट्रा आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सियाहती मकामात में शामिल है। हर साल लाखों लोग इस शहर की हैरत अंगेज़ तामीरात और कदीम सकाफती विरसे को देखने के लिए आते हैं। मौजूद सामीन इकराम, क्राइस्ट द रिडीमर मुजस्मा ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में कॉर्कोवेडो पहाड़ पर वाक़ है और दुनिया के सबसे मशहूर मुजस्मों में शुमार होता है। इसका बुनियादी तस्वुर 1920 की दिहाई में पेश किया गया जब ब्राज़ील के कैथोलिक रहनुमाओं ने एक ऐसा मुजस्मा तामीर करने की तजवीज़ दी जो मुल्क की मसीही शनाख्त को ज़ाहिर करे। इस मंसूबे पर काम 1922 में शुरू हुआ और 1931 में ये मुकम्मल हुआ। इसके डिज़ाइन का सेहरा ईटर दा सिल्वा कोस्टा और पॉल लंडुस्की को जाता है जो एक मशहूर फ्रांसीसी मुजस्मा साज थे। मुजस्मे को बनाने के लिए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और सूपस्टोन का इस्तेमाल किया गया जो इसे सख्त मौसमी असरात से महफूज रखता है। ये मुजस्मा 30 मीटर यानी 98 फुट ऊंचा है और इसके बाजुओं की चौड़ाई 28 मीटर यानी 92 फुट है, जबकि यह तकरीबन 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर नस्ब है जिसकी वजह से ये शहर के कई मकामात से साफ नज़र आता है। इस मुजस्मे की एक ख़ास बात इसके बाजुओं का खुला होना है जो मोहब्बत और कबूलियत की अलामत है। ये मुजस्मा रियो डी जेनेरो का सबसे नुमायाँ लैंडमार्क है और हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। 2006 में वेटिकन के नुमाइंदों ने इस मुजस्मे को मुक़द्दस मकाम करार दिया और तब से यहाँ ख़ुसूसी मजहबी तकरीबात मुनक़िद होती हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े आर्ट डेको मुजस्मों में शामिल है। बिजली गिरने की वजह से इस मुजस्मे को कई बार नुकसान पहुँचा है और इसे बारहा मुरम्मत किया गया है। मौजूद सामीन इकराम, क्राइस्ट द रिडीमर हर साल तकरीबन 2 मिलियन सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। रियो डी जेनेरो के मशहूर केबल कार के ज़रिए सियाह इस पहाड़ पर चढ़कर इस यादगार का करीब से मुशाहिदा करते हैं। यह मुजस्मा ब्राज़ील की सकाफत, मजहब और फ़न का एक अहम हिस्सा है और इसे दुनिया भर में ब्राज़ील की पहचान के तौर पर भी जाना जाता है। मौजूद सामीन इकराम, माचू पिचू जनूबी अमेरिका में इनका तहजीब के सबसे शानदार और पुरअसरार आसार में से एक है। ये हैरत अंगेज़ शहर 15वीं सदी में इनका बादशाह पाचाकुती के दौर में बनाया गया था। ये पहाड़ी इलाके में वाक़ है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये या तो इनका हुक्मरानों की रिहाइशगाह थी या फिर एक मुक़द्दस मजहबी मकाम था। तहम हिस्पानवी हमलावरों ने इसे कभी दरियाफ्त नहीं किया जिसकी वजह से ये सदियों तक महफूज रहा। माचू पिचू को धूप के माबद यानी टेम्पल ऑफ द सन, 3 विंडोज़ हाउस और रॉयल पैलेस जैसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस शहर की सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसे बगैर किसी सीमेंट या चूने के पत्थरों को इंतहाई महारत से जोड़कर बनाया गया है जो इनका इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है। माचू पिचू का मतलब है कदीम चोटी, जो मकामी ज़बान में इसके महल वक़ू को ज़ाहिर करता है। ये दरियाफ्त से कबल 400 साल तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा। 1983 में यूनेस्को ने इसे आलमी विरसा करार दिया। माचू पिचू पीरो के सबसे बड़े सियाहती मकामात में से एक है और हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं। सियाह यहाँ पहुँचने के लिए या तो ट्रेन का सफ़र करते हैं या इनका ट्रेल के ज़रिए पैदल का सफ़र करते हैं जो एक मशहूर हाइकिंग रूट है।
मुझे सामीन कराम, चिचन इत्ज़ा मैक्सिको की सबसे मशहूर कदीम आसार कदीमा की जगहों में से एक है, जो माया तहजीब का एक बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर था। इसका नाम चिचन का मतलब है कुएं के किनारे, जबकि इत्ज़ा मकामी कबाइल का नाम था। ये शहर 600 ईस्वी के आसपास कायम किया गया था और तकरीबन 1200 ईस्वी तक माया तहजीब का एक अहम सकाफती, मजहबी और तिजारती मरकज़ रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, चिचन इत्ज़ा कई यादगार इमारतों पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे मशहूर एल कैस्टिलो या कोकोलकन टेम्पल है, जो 30 मीटर बुलंद एक एहराम है। ये एहराम 365 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है, जो साल के 365 दिनों की नुमाइंदगी करता है। बहार और खिज़ां के एतदाल के दौरान सूरज की रोशनी के साथ ऐसा मंजर बनता है कि ऐसा लगता है जैसे एक अजीम सांप सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो, जो माया अकीदे में कोकोलकन देवता की अलामत है। यहाँ एक अजीम बॉल गेम कोर्ट भी मौजूद है, जहाँ माया लोग खेलों के ज़रिए मजहबी रसूमात अदा करते थे। चिचन इत्ज़ा का एहराम कदीम फल्कियाती इल्म की शानदार मिसाल है। ये माया तहजीब के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकामात में शामिल है। 1988 में यूनेस्को ने इसे आलमी विरसा करार दिया था। चिचन इत्ज़ा मैक्सिको के सबसे मशहूर सियाहती मकामात में शामिल है, जहां हर साल लाखों सियाह आते हैं। ख़ासतौर पर 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूरज की रोशनी से सांप जैसा साया नज़र आता है, तो यहाँ हज़ारों लोग इस मंजर को देखने के लिए जमा होते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, कोलोसियम दुनिया का सबसे मशहूर एम्फी थिएटर है, जो कदीम रोमी सल्तनत के अरूज की अलामत समझा जाता है। इसका तामीराती आगाज़ रोमी बादशाह वेस्पासियन ने 70 सदी ईस्वी में किया और 80 सदी ईस्वी में तैतीस के दौर में ये मुकम्मल हुआ। ये उस वक्त का सबसे बड़ा थिएटर था और यहाँ मुख्तलिफ तफरीही मुकाबले मुनक़िद किए जाते थे, जिनमें ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयाँ, जानवरों के शिकार और तारीखी जंगों की नकल शामिल थी। कोलोसियम एक बैज़वी शक्ल का थिएटर है, जिसमें तकरीबन 50,000 से लेकर 80,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। इसमें 4 मंजिलें हैं, जिनमें मुख्तलिफ दरवाजे, रास्ते और ज़ेर ज़मीन सुरंगें मौजूद हैं। यहाँ ग्लैडिएटर्स के कमरे, जानवरों के पिंजरों और खुफिया रास्ते भी थे, जहाँ से जंगजू और जानवर मैदान में आते थे। इसका बैरूनी ढांचा संगमरमर और चूना पत्थर से बनाया गया है, जो आज भी काफ़ी हद तक महफूज है। कोलोसियम का असल नाम फ्लावियन एम्फीथिएटर था। हर साल यहाँ 100 दिनों तक जंगजुओं की लड़ाइयाँ मुनक़िद होती थीं। वक्त के साथ साथ ज़ल्ज़लों और जंगों की वजह से इसका कुछ हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन आज भी एक शानदार तारीखी विरसा है। कोलोसियम रोम के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकामात में शामिल है, जहाँ लाखों सियाह आते हैं। इसके अंदर जाने के लिए खुसूसी टूर्स का मुनक़िद किए जाते हैं, जिनमें कदीम रोमी तारीख़ को तफसील से बयान किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ताज महल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, जो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था। मुमताज़ महल की वफ़ात 1631 में हुई और इसी साल शाहजहां ने उसका मकबरा बनाने का फ़ैसला किया। यह इमारत 1632 में तामीर होना शुरू हुई और 1653 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में हिंदुस्तान, ईरान, तुर्की और वस्ती एशिया के माहिर मेमारों ने हिस्सा लिया। ताज महल सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो मुख्तलिफ रंगों की रोशनी के मुताबिक अपना रंग बदलता है। इसका गुंबद 73 मीटर ऊंचा है, जो मुग़ल फ़न तामीर की शानदार मिसाल है। इसके चारों अतराफ 4 मीनार हैं, जो इसे एक मुतवाज़िन और ख़ूबसूरत डिज़ाइन फराहम करते हैं। अंदरूनी हिस्से में कुरानी आयात कुंदा की गई हैं, जो इसकी रूहानी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने तामीर मुकम्मल होने के बाद मज़दूरों के हाथ काटने का हुक्म दिया था, ताकि वो दोबारा ऐसा कोई शाहकार ना बना सकें, लेकिन इस बात की तारीख़ी तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं हुई।
ताज महल को मोहब्बत की निशानी भी कहा जाता है क्योंकि ये एक बीवी के लिए शोहर की मोहब्बत की अलामत है। 1983 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया। ताज महल भारत का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मकाम है और हर साल लाखों सियाह इसे देखने आते हैं। खास तौर पर चांदनी रात में इसका मंजर बेहद खूबसूरत होता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको दुनिया के 7 अजायबात के बारे में जो मालूमात फ़राहम की गई हैं वो दिलचस्प और तालीमी साबित हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल वंडर्स नेवर सीन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मालूमात और भी लोगों तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।